ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اعلیٰ سطحی مباحثے میں شرکت، جبکہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، ملک میں ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں، کرپشن ختم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تیزی سے AI کی جانب بڑھنے والے ممالک میں شامل ہے، کوشش ہے کہ پاکستان کی زراعت کو AI ٹیکنالوجی سے منسلک کیا جائے۔ سعودی ولی عہد کے ترقی کے ویژن کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ And yet in 2022, we faced devastating cloud outbursts, floods, and storms, and we lost in the process. Our economic loss is $130 billion. Large swaths of our land was underwater. Crops were destroyed. Millions of houses were destroyed. And then we have to borrow loans to rebuild those areas which were devastated. And then again in this year, we had terrible floods, cloud outbursts, and we were absolutely helpless. And we have to, it's like going up the ladder and then you come back down, going up the ladder and then come back down. This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. We want to work hard. We are working hard. We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Yet these challenges, which are real, have to be shared by the global humanity. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ سے اہم ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک سعودی عرب وزرائے خارجہ کی ملاقات ریاض میں ہوئی۔ وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو کی۔ گفتگو میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان سعودی عرب نے تمام شعبوں میں شراکت داری مزید گہری کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ اور اب خبر شامل کریں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر تہران پہنچ چکے ہیں، جبکہ ایئرپورٹ پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو اور اعلیٰ حکام نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی تہران میں ECOs وزرائے داخلہ کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ خبر دیں آپ کو، پاکستان ملیشیا میٹ ایکسپورٹ کمیٹی کا اجلاس جام کمال خان کی زیر صدارت منعقد کیا گیا۔ جام کمال خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت گوشت کی برآمدی بنیاد مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ملیشیا پاکستان کے گوشت کی بڑی منڈی، برآمدات بڑھانے کے وسیع مواقع، پالیسی میں بیماریوں پر قابو، حلال سرٹیفکیٹس اور انفراسٹرکچر کی بہتری پر فوکس ہوگا۔ ہارون اختر کا کہنا تھا کہ ملیشیا کو گوشت برآمدات کی صلاحیت $200 ملین سالانہ ہے، جبکہ حلال سرٹیفکیشن یقینی بنانے کے لیے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کراچی بندرگاہ کے کردار کے پیش نظر سندھ حکومت بھی عمل درآمد میں شامل ہوگی۔
और अब खबर शामिल करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के हवाले से। आपको बताते चलें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से निमल यूनिवर्सिटी पेशावर कैंपस के रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात हुई। मुलाकात में निमल यूनिवर्सिटी के डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई, जबकि गवर्नर ने DI खान में निमल यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया। DI खान में कैंपस से जनूबी अजला और बलोचिस्तान के नौजवान भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निमल यूनिवर्सिटी के आलमी मेयार के तालीमी प्रोग्राम्स की तारीफ भी की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध जॉब पोर्टल क्लिक करके लॉन्च कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले कि सिंध जॉब पोर्टल मौसर, जामे और शहरी मरकूज IT सिस्टम्स की बेहतरीन मिसाल है। हम एक डिजिटल तौर पर मुस्तहकम और मुस्तकबिल के लिए तैयार सिंध की बुनियाद रख रहे हैं। उनका कहना था कि हम ऐसे नताइज दे रहे हैं जो आवाम की जिंदगियों में मस्बत तब्दीली लाएं। हम ऐसा सिंध बना रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी आवाम का हक हो। उनका ये भी कहना था कि ये मनसूबा डिजिटल तब्दीली, शफाफियत और आवामी बाइख्तियारी का मजहर है। ये मामला लिटिगेशन में चला गया था, कोर्ट तक पहुंच गया। हमने कहा कि जी इसको ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाए, और उसी सिलसिले में सिंध हुकूमत का अपना भी इनिशिएटिव है कि हम हर चीज को डिजिटाइज कर रहे हैं। सिर्फ कल ही की बात है, होम मिनिस्टर साहब, IG साहब बैठे, हमने जो चालान सारा डिजिटाइज कंप्यूटराइज किया है उसका आगाज किया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, हमने अपनी कैबिनेट की सारी प्रोसीडिंग्स, अब वो 50-50 कॉपियां नहीं बनती, हर चीज आपको डिजिटाइज मिलती है, कोई कागज नहीं होता कैबिनेट के अंदर, और लोग अपनी टैबलेट से काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये इनिशिएटिव जो हमारा सिंध जॉब पोर्टल का है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा मैं ये कहूँगा, इसको मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर शेख साहब इसको सही इसके बारे में बताने से, मैं कोशिश करूंगा कुछ ज्यादा इसको एलैबोरेट करूं, इसलिए कि मैं पहले दिन से, मेरे ख्याल है 1 दर्जन के करीब तो मीटिंग्स मैंने इस पे ली और इसीलिए टाइम लगा। ये हमारी फ्यूचर के लिए, ताकि हम मेरिट पे, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि एक नट और बोल्ट भी इतना इंपॉर्टेंट है एक मशीन में जितना उसकी, अगर कोई कंप्रेसर है, एयर कंडीशनिंग है, रेफ्रिजरेटर, लेकिन अगर एक बोल्ट भी खराब होता है तो पूरी मशीन बैठ जाती है। तो हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट ऐसी ही करनी है कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास हुआ, जबकि कराची के बाद हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना में खवातीन और तालिबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया। येलो लाइन BRT के अहम हिस्से ताज हैदर पुल को आवाम के लिए खोलने का भी फैसला हुआ, जबकि कराची में गुलशन मेमार टावर EV बसेस का नया रूट शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि हुकूमत सिंध खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। डबल डेगर और EV बसेस की नई खेप जल्द कराची पहुंचने वाली है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिक्र करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी से इंडोनेशिया के 9 तैनात काउंसिल जनरल ने मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू की गई। कराची बंदरगाह की सलाहियत से भरपूर इस्तिफादा और लॉजिस्टिक सहूलियात में बेहतरी पर जोर दिया गया। काउंसिल जनरल ने उम्मीद की घंटी को अवामी खिदमत का काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया।
और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि MQM पाकिस्तान का कराची स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान 2020 पर अमल दरामद कराने के लिए अवामी दस्तखती मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। पहले मरहले में पम्फलेट, हैंडबिल्स और सोशल मीडिया के जरिए आगाही मुहिम भी दी जाएगी। आवाम को बताया जाएगा कि पीपल्स पार्टी का ग्रेटर कराची प्लान 2047 के पीछे शहर को तबाह करने की क्या साजिश है, जबकि दस्तखती मुहिम का मकसद कराची ग्रेटर प्लान के जरिए कराची पर कब्जे की साजिश को भी नाकाम बनाना है। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचहो की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इस इजलास में सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर और SSPs की ऑनलाइन शिरकत हुई। इजलास में सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स, SSP, CEO सिंध हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर एहसन, सेक्रेटरी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर दुरेनाज और एडिशनल डायरेक्टर CDC ने ऑनलाइन शिरकत की। डॉक्टर अजरा पेचहो का कहना था कि आवाम की जान से खेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए, किसी किस्म की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। अगर किसी MNA या MPA की सिफारिश आए तो उन्हें फौरन बताया जाए, मैं खुद निपट लूंगी। सिटी काउंसिल में एक और बड़ी हलचल देखने में आ रही है, जबकि मेयर कराची के हिमायत याफ्ता 32 अरकान मुनहरिफ PTI अरकान से पार्टी ने लाताल्लुकी का भी इजहार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कराची ने 32 अरकान सिटी काउंसिल से इजहार लाताल्लुकी का खत मेयर कराची को इरसाल कर दिया। PTI कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब को खत भेज दिया। कहा कि मुनहरिफ अरकान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ताल्लुक नहीं, सरकारी खतो किताबत अवामी हलकों में मुनहरिफ अरकान का ताल्लुक PTI से ना जोड़ा जाए। मुनहरिफ अरकान सिटी काउंसिल को आजाद मेंबर समझा जाए। प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से फीसों में किसी भी गैर कानूनी इजाफे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सिंध का एलामिया में वाज़े ऐलान सामने आया। डायरेक्टर जनरल रफिया जावेद की जानिब से वजाहत जारी कर दी गई। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के तहत तमाम निजी तालीमी इदारों को पिछले साल की फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही वसूल करने की इजाज़त है। और अब बुलेटिन में ये अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कि मेट्रो 1 न्यूज़ के डायरेक्टर राना इकबाल के वालिद राना मोहम्मद अफजल की नमाज जनाजा रिजवान सोसाइटी के मुबारक मस्जिद में अदा कर दी गई, जबकि मरहूम को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मेट्रो 1 TV के डायरेक्टर राना मोहम्मद इकबाल के वालिद राना अफजल की मैयत उनकी रिहाइशगाह रिजवान सोसाइटी से उठाई गई, नमाज जनाजा मुबारक मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन खालिद आराइन, डायरेक्टर अमीर चांडियो, काजिम रजा, दीगर स्टाफ के अलावा अजीज़ो अकाइब और मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की और राना इकबाल से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। नमाज जनाजा के बाद मैयत को मकामी कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां सौगावारों की आहों और सिसकियों में मरहूम को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिक्र करेंगे शहर कायद के बासियों के नए चैलेंज की। ई चालान का आगाज कर दिया गया। सिर्फ 6 घंटों में शहरियों को 1.25 करोड़ रुपए का चालान किया गया। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चंद घंटों में मजमूई तौर पर 2662 चालान जारी किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट न बांधने पर किए गए, जिनकी तादाद 1535 है। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507, रेड लाइट क्रॉस करने पर 166, ओवर स्पीडिंग पर 419 चालान किए गए।
और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे जमाते इस्लामी के अमीर मुनम जफर के हवाले से। आपको बताते चलें कि हुकूमत सड़कें दुरुस्त करे फिर ई चालान सिस्टम नाफिज करे। जमाते इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर अवाम की आवाज बन गए। कहा पंजाब में मोटरसाइकिल जुर्माना 200 रुपए, कराची में 5000 रुपए क्यों? सिंध हुकूमत आलमी मेयार के जुर्माने लगा रही है। कराची की सड़कें तबाह हाल हैं। कराची में रवां साल 700 से जायद ट्रैफिक हादसात में जख्मी हुए। कराची के अवाम के लिए जमाते इस्लामी मैदान में डटी हुई है। हुकूमत शहर की सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर खामोश है। और पंजाब के अंदर यही जुर्माने 10 गुना कम है। यानी जो आप 5 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं मोटरसाइकिल सवार का, पंजाब में वही जुर्माना 200 रुपए है। वहां भी सीसीटीवी लगे हुए हैं और पहले से लगे हुए हैं। ये ऐसा फर्क क्यों है? ये पूरा एक लूट मार का धंधा है। भाई आप फैसिलिटेट करें, आप लोगों को सहूलत दें, आप लोगों को अवेयरनेस दें। आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देते, बहुत महदूद पैमाने पे कहीं बैनरिंग की गई है, लेकिन इस बात की जरूरत है कि मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए आप लोगों को अवेयरनेस तो दें। आप शहर की सड़कों की हालत को बेहतर करें, उसके बाद आप ई चालान करें, कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन इस तरह आप सहूलत न दें और लोगों को जो है वो एक और मुसीबत के अंदर मुब्तला कर रहे हो, ये चीज तो किसी तौर काबिल कबूल नहीं। जामिया कराची के करीब झाड़ियों में आतशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या, और यहाँ आपको अपडेट कर दें कि आग बुझने के बाद एक शख्स की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू काम का कहना है कि जाबाक शख्स की शनाख्त 50 साला रफ़ीक के नाम से की गई है। आग पर काबू पाने के दौरान 2 अफराद की हालत गैर हो गई। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एहसान यूनुस, बताएगा इस वाक़े की मजीद क्या अपडेट्स हैं और आग लगने की वजूहात के बारे में अगर इल्म हो सका है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखें, ये जामिया कराची करीब गुलशन नूर का इलाका है, जहाँ झाड़ियों में शाम के औकात में आतिशबाजी का वाकया रिपोर्ट किया गया था। 3.5 घंटे से जो फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 की टीमें हैं वो मुतासरा मकाम पर जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा फायर टेंडर्स जो है वो आग जाने में मसरूफ अमल रहे और अब 3.5 घंटे के बाद जो आग थी उस पर काबू पा लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि जामिया कराची गुलशन नूर के करीब जो झाड़ियों में आतिशबाजी का वाकया रिपोर्ट हुआ था, रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और मुतासरा मकाम पर इस वक्त कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। ये बताया जा रहा है कि आग बुझने के बाद एक शख्स की लाश जो है वो झाड़ियों के अंदर से बरामद की गई है। इसकी शख्स की शनाख्त जो है 50 साला रफीक के नाम से सामने आई है, जब पर आग पर काबू पाने के दौरान 2 अफराद की हालत भी बताया जाता है कि गैर हो गई है। दोनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि किया जा रहा है। आग लगने के बाद बताया जा रहा है कि खुश्क और तेज हवाएं कराची शहर में चलने के बाइस आग मुख्तसर हिस्से के बाद जो है बड़े पैमाने पर शिद्दत इख्तियार कर गई थी, जिसकी वजह से मजीद फायर टेंडर्स जो है मुतासरा मकाम पर तलब किए गए थे। इस वक्त आग को बुझा दिया गया और मुतासरा मकाम पर कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। अब तक जो आग लगने की वजूहात हैं वो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से नहीं बताई गई हैं। अलबत्ता एक शख्स इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में जाँ बहक और 2 अफराद की हालत गैर हो गई है, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और खबर शामिल करें कि गुज़िश्ता माह मच्छर कॉलोनी में मुसल्लह मुल्जिमान ने रक्षा सवार आसिफ नामी शख्स को लूटने की कोशिश की, जबकि SSP किमाड़ी ने कहा कि दौरान डकैती मुज़ाहिमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग की, जिससे मुद्दई आसिफ का 5 साला कमसिन बच्चा सुफियान जख्मी हुआ था। मुकदमे के इंदराज के बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SDPO किमाड़ी अरशद आफरीदी की सरबराही में टीम तश्कील दी गई, जबकि कैप्टन फैजान अली ने बताया कि तश्कील करदा टीम ने निहायत महारत से केस को इंटरोगेट करके मुल्जिमान का सुराग लगाया और रात गए कार्रवाई करते हुए वारदात के मास्टरमाइंड को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। FIA कराची जोन की कार्रवाइयों के हवाले से आपको अपडेट करते चले। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान को गार्डन न्यू चार्ली रोड और कैंट स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान में मुस्तफ़ा, शकील, इमदाद अली और काशिफ गौरी शामिल हैं, जबकि तफसीलात के मुताबिक 60 लाख रुपए गैर मुल्की करेंसी और डिजिटल शवाहिद भी बरामद कर लिए गए हैं। बरामद करेंसी में सऊदी रियाल, दरहम, ईरानी रियाल और डॉलर्स शामिल हैं।
और अब बात करेंगे एसआईयू की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के हवाले से। आपको बताएं कि एसआईयू का खुफिया इत्तला पर गार्डन के इलाके में छापा, बैरून मुल्क से आने वाली फैमिलीज को लूटने वाला कार गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी अमजद शेख कहते हैं कि गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस कैप और टी शर्ट का इस्तेमाल करते थे। वारदातों में किराए की कार का इस्तेमाल भी किया जाता था। मुलजिमान से असलहा और छीने हुए मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। मुलजिमान पर डकैती और लूट मार के मुतादिद मुकदमात भी दर्ज हैं। खबर दें आपको, गार्डन पुलिस का दौरान पेट्रोलिंग वसीउल्लाह लाखों ग्रुप के कारिंदे से आमना सामना हो गया। धोबी घाट के करीब फायरिंग के तबादले में मुलजिम जासिम उर्फ शंटू गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिम के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुलजिम भत्ताखोरी समेत स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस रहा है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम पड़ोसी मुल्क में रहने वाले हसनैन के कहने पर वारदातें करता था। DIG साउथ की SHO और टीम को शाबाशी, साथ ही साथ उन्होंने तारीफी असनाद देने का भी ऐलान किया। कराची में AVLC की जानिब से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया एडवाइजर अली अयूब की छीनी गई गाड़ी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी 22 अक्टूबर को FB एरिया ताहिर विला चौरंगी के करीब मुलजिमान ने असलहे के जोर पर छीनी थी। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट नस्ब थी, जबकि CCTV फुटेजेस की मदद से वारदात में मुलव्वस मुलजिमान सज्जाद लाशारी, इमरान सराइकी, उबैद पंजाबी और शहजाद लाशारी की शनाख्त कर ली गई। कार्रवाई के बाद गाड़ी मालिक के हवाले कर दी गई। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस मुतहरिक है। ईस्ट पुलिस की जानिब से अजीज भट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कॉमिंग सर्च ऑपरेशन किया गया। दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घरों, दुकानों और होटल्स की बारीक बीनी से तलाशी ली गई, जबकि बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस के जरिए मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद की शनाख्त और तस्दीक का अमल भी लाया गया। और अब खबर शामिल करें कि स्टील मिल से लोहा, तांबा और कीमती सामान चोरी करने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, जबकि बिन कासिम की हुदूद से 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। शनाख्त जाहिद और अता मोहम्मद के नाम से हुई। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा लोहे के औजार बरामद कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान स्टील मिल से कीमती लोहा और दीगर सामान चोरी करने में मुलव्विस रहे हैं, जबकि मुलजिमान चोरी शुदा स्क्रैप को मुख्तलिफ गोदामों में भी फरोख्त करते थे। खबर दें आपको, कोरंगी जान चौक के करीब स्क्रैप के गोदाम में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया, जबकि कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। किसी भी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। लाखों रुपए का सामान खाकिस्तर हो गया। और अब बात करें कि खूनी टैंकर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, हादसात पर हादसात हो रहे हैं। कराची के इलाके कस्बा मोड़ के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जख्मी हो गए। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि शनाख्त 20 साला जुबैर और 18 साला आसिया के नाम से हुई। वाटर टैंकर का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें कि मिलावट शुदा दूध के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया है। कराची इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। मुज़र सेहत दूध की फरोख्त पर 7 दूध की दुकानों को सील कर दिया गया। कार्रवाइयाँ जनूबी, शर्की और मलीर में की गई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं कि तमाम डिप्टी कमिश्नर दूध के मेयार की चेकिंग की मुहिम जारी रखें, कानूनी और ज़रूरी कार्रवाइयाँ करें। और अब बात करेंगे सोने की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। आपको बताते चलें कि सोने की कीमत में एक बार फिर कमी देखने में आ रही है, जबकि फी तोला सोना 14,000 रुपये सस्ता हो चुका है। कीमत 4,16,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,65,693 रुपये की सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $140 की कमी के बाद $3,940 फी ऑन्स मुकर्रर हो गया।
چیف آف دی نیول اسٹاف آل پاکستان اسکواش کے تیسرے سیزن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ٹورنامنٹ 2 نومبر تک روشن خان جہانگیر خان کمپلیکس کراچی میں کھیلا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے مزمل یاسین کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ تیسری چیف آف دی نیول اسٹاف آل پاکستان اسکواش چیمپئن شپ کی شاندار افتتاحی تقریب روشن خان جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس کراچی میں منعقد ہوئی۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی اور باضابطہ طور پر ربن کاٹ کر چیمپئن شپ کا آغاز کیا۔ سالانہ اسکواش چیمپئن شپ میں 15 میچز کے دوران 32 مرد اور 16 خواتین کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر کموڈور مدثر خورشید نے مہمانوں، کھلاڑیوں اور اسپانسر کا شکریہ ادا کیا۔ پاک بحریہ کھیلوں کے فروغ اور قومی کھلاڑیوں کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اجاگر کرنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ چیمپئن شپ میں خواتین کی کیٹیگری کی شمولیت، کھیلوں میں مساوی مواقع فراہم کرنا پاک بحریہ کی عزم کی عکاسی ہے۔ The third CNS All Pakistan Squash Championship will feature an exciting format with multiple qualifying rounds, followed by the main draw, bringing together the finest national talent. Over the course of the championship, participants will display their skills, stamina, and sportsmanship spirit in pursuit of victory. I am confident that this tournament will produce thrilling encounters and further strengthen Pakistan's standing in the game of squash. My best wishes go out to all the players participating in this championship. I am certain that they will uphold the highest standards of the sportsmanship, discipline, and respect for the rules of the game. With this, I once again welcome you all and look forward to a memorable and remarkable championship in the coming days. Pakistan Navy Zindabad, Pakistan Zindabad. افتتاحی تقریب میں سول و عسکری افسران سمیت اسپانسرز اور اسکواش کے سینئر کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ مزمل یاسین، میٹرو ون نیوز کراچی۔ اور اب خبر شامل کریں کہ ریڈ بل پاکستان نے لاہور کے کیو سینما میں ایک شاندار ریڈ کارپیٹ ایونٹ کے دوران بے حد منتظر دستاویزی فلم ارسلان ایش کنگ آف ٹیکن کا پریمیئر منعقد کیا، جبکہ یہ فلم پاکستان کے ناقابل تردید ای اسپورٹس لیجنڈ اور 7 مرتبہ کے چیمپئن ارسلان صدیق ارسلان ایش کی غیر معمولی اور حقیقی زندگی کی کہانی کو پیش کرتی ہے۔ First top 8 at a TWC final. He's got the maybe the only one to two-time it here. Across the history of ticket sets. Maybe the only one to two-time. First top 8 at a TWC final. He's got the میں جو 2 ایوو جیت چکا تھا اور میں نے سوچا کہ آج یہ بھی جیت جاؤں گا، ایزی جس سے پہلے جیت۔ maybe the only one to two-time it here. Across the history of ticket sets. تو انسان ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں ہم، تھوڑا سا غرور میں آ گیا تھا، تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جیتنا دے اسلان کافی ایموشنل بھی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یار تمہارے پاس ٹیکن ورلڈ ٹور کا ٹائٹل ہے، میرے پاس وہ ٹائٹل ہے۔ TWT Finals has always eluded him. The Tekken World Tour follows a different sort of format, so Arsalan had difficulty understanding how that would work. 이상하게 이제 파이널에 왔을 때 لیکن اس دفعہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں جیتنے کے لیے، اور میں اس لیے زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں کیونکہ لاسٹ ٹورنامنٹ ہے پورا ٹیکن۔ آئی تھنک کافی پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ جہاں دروگا والا سے تعلق رکھتا تھا میں ہوں، اور اس جگہ سے یو ایس اے جانا اور دنیا بھر گھومنا بھی، یورپ سے میں جیت کے آیا میں ایوو، تو ایک جو جرنی ہے کافی انبلیویبل لگتی ہے کہ دروگے والے کا لڑکا جا کے ورلڈ چیمپئن بن چکا ہے۔ بس آئی تھنک ڈیڈیکیشن تھی اور گیمنگ کا پیشن تھا اور میری ماں باپ کی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے میں یہاں پہ پہنچا۔ ایکسپیرینس تو اوبیسلی بہت اچھا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ارسلان کے بارے میں ڈاکیومنٹری بن رہی ہے تو میں تو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا ہے وائس اوور دینے کے لیے، فرسٹ ٹائم گیونگ اے وائس اوور، تو اٹ واز اے ویری فن ایکسپیرینس۔ موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے، اکتوبر کے اختتام پر شہر قائد کا موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق
हवा में नमी का तनासुब 42% है। शुमाल मशरिक से 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज ज़्यादा दर्ज हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।